IMF نے نئی شرطیں نہ لگائیں تو معاملات طے ہیں. IMF سے ڈیل کے بعد فوراً خوشحالی نہیں آ جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگی سینیٹرز سے خطاب. کہا کہ پچھلی حکومت نے IMF معاہدے کی دھجیاں اڑائیں. ان کو ہم پر اعتبار ہی نہیں رہا تھا. سابق حکومت نے دوست ممالک کو بھی ناراض کیا. چین بھی سوچتا ہوگا کہ ہم ان سے کب تک مانگتے رہیں گے. سعودی عرب کہتا ہے کہ یہ کب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. حکومت کا مدت پوری کرنے کا فیصلہ بھی سنایا. بولے تمام اتحادی متفق ہیں کہ میعاد پوری کریں گے، لیکن پہلے ریاست پھر سیاست. ریاست بچ جائے گی تو سیاست بھی ہو جائے گی. IMF کے ساتھ معاہدے میں نئی شرطیں کیسی؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کہا نئی شرطیں نہ آئیں تو IMF سے معاہدہ ہو جائے گا. نون لیگ پہلے کہتی تھی یہ عمران خان کا عالمی ادارے سے معاہدہ ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں. اگر یہ عمران خان کا معاہدہ تھا تو نئی شرطیں کہاں سے آ گئیں؟ ایک اور بجٹ آ رہا ہے. ہمیں پتا چلا کہ IMF نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز لگانے ہیں 440 ارب روپے کے جو لوگ ابھی پے کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک ٹیکسز لگانے. ہفتے پہلے اسی حکومت نے سائن کر کے پیش کیا ہے اکنامک سروے. کس بینکرپسی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بینکرپسی ہے ان کی اپنی نااہلی کی. پہلے IMF کا ایک خانہ پری بجٹ آیا، اب دوسرا بجٹ چل رہا ہے اور ایک تیسرا بجٹ آ رہا ہے. IMF نے مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا سینٹ میں انکشاف. کہا حکومت نے اقتصادی سروے جاری کیا، تمام اشاریہ بہترین ہے. اکنامک سروے رپورٹ میں بہترین کارکردگی رپورٹ پر شہباز حکومت نے ہی دستخط کیے. پھر ملک دیوالیہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ سب موجودہ حکومت کی نالائقی ہے. 3 ماہ میں بہترین معیشت کا کباڑہ نکال دیا. اب اپنی نالائقی ہم پر ڈال رہے ہیں. بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار ہے. پروگریسو قرار دینا سفید جھوٹ ہے. مہنگائی نیچے نہیں آئے گی. مہنگائی لا کر IMF سے معاملات طے کرنے سے بے روزگاری کا طوفان آئے گا. PTI رہنما حماد اظہر کا وزیر اعظم کو جواب. کہا معیشت ہمارے دور میں مضبوط ہوئی، انہوں نے آ کر ابہام پیدا کیا. موجودہ حکومت کے آنے کے بعد معاشی بحران نے سر اٹھایا. اسد عمر نے کہا شہباز شریف IMF معاہدے تلے اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. کرائم منسٹر کی مدت کا تعین میر جعفروں کا ٹولہ نہیں کرے گا. کرائم منسٹر کی مدت کا تعین وہ کریں گے جن کے ہاتھ میں ان کٹ پتلیوں کی ڈور ہے. اچھی بھلی مستحکم پھلتی پھولتی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. موصوف نے نالائقی میں غیر معمولی نام پیدا کیا. اب کوئی بیانیہ ان کرداروں کی ساکھ واپس نہیں لا سکتا. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو گیا. روپے کی قدر بڑھ رہی ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں بجٹ پر IMF سے کافی چیزوں پر اتفاق ہو گیا. ہم نے صرف امیروں پر ٹیکس لگایا تاکہ قرض کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. وزیر اعظم کے بچوں کی کمپنی پر بھی ٹیکس لگایا. وزیر اعظم اور میرا ٹیکس بھی بڑھ گیا. یہ ملکی تاریخ کا پہلا پروگریسو بجٹ ہے. چین نے $2.3 بلین کا قرض منظور کر لیا. رقم پیر تک آ جائے گی. چین نے جون اور جولائی کے سیف ڈپازٹس کو بھی ری رول کر دیا. نئے آرمی چیف کی تقرری اکتوبر تک ہونی چاہیے. روایت یہی ہے کہ 1 سے 1.5 ماہ پہلے فیصلہ کر لیا جاتا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرے کی کوئی اطلاع نہیں. عمران خان کی وزیر اعظم والی سیکیورٹی برقرار ہے. عمران خان نے مسلح جتھوں کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کی. ان کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلنا چاہیے. ان کے نظریے کی بنیاد پر بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے. عمران خان اس مرتبہ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں. آصف علی زرداری سمیت سب اسٹیک ہولڈرز نے کہا کہ کالعدم TTP سے آئین کے تحت بات چیت ہونی چاہیے. قبائلی علاقوں کا انضمام ختم ہوگا، نہ فوج کی واپسی ہوگی. 30% بدترین مہنگائی اور حکومت کا مزدوروں سے سنگین مذاق. تنخواہ 25,000 روپے ماہانہ کرنے کے اپنے ہی نوٹیفیکیشن سے فرار. وزیر اعظم نے پہلے اپنی پہلی تقریر میں کیے گئے اعلان سے یو ٹرن لیا. پھر 17 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے 1 اپریل سے نفاذ کا اعلان کیا. مگر 20 جون کو پھر یو ٹرن لے کر 1 جولائی سے اجرت میں اضافے کا لالی پاپ دے دیا. محنت کش طبقے نے حکومت کے وعدہ خلافی پر احتجاج کا اعلان کر دیا. صدر انصاف لیبر ونگ
राना अब्दुल समी कहते हैं कि हुकूमत 20 जून का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेकर 1 अप्रैल से तनख्वाह में इजाफे का वादा पूरा करे। हुकूमत इदारों को ताबे करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान का इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीटीआई और बाबर आवान की मुलाकात में इदारों को ताबे लाने के लिए की गई गैर कानूनी कानून साजी पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी के नाम पर जमहूरी रिवायात को रोंद रहा है। जमहूरियत के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी साफ शफाफ इंतखाबात हैं। बाबर आवान का जमहूरी अक़दार का भरपूर दिफा का ऐलान। आईनी मामलात पर जल्द अदलिया से रुजू किया जाएगा। पिछली हुकूमत को कोसने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में कहा कि आवाम को बातें नहीं सुननी, काम चाहिए। जब तक गलत मुआशी फैसले करने वालों का तयन नहीं होगा, बेहतरी नहीं आएगी। मफ्ता इस्माइल हो या फिर कोई और, किसी को तो गलतियों का जिम्मेदार ठहराना होगा। आज भी मजदूर को 25,000 मजदूरी नहीं मिल रही। पार्लियामेंट कैफेटेरिया के मुलाजमीन को भी 15,000 तनख्वाह दी जा रही है। साबिका हुकूमत ने बर वक्त सौदे नहीं किए, जिसका नुकसान आज हम उठा रहे हैं। हमने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया है। गुज़िश्ता दौर में जो मईशत से खिलवाड़ हुआ, किसी से ढका छुपा नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी बोले, अपना मलबा साबिका हुकूमत पर डाला जाता है। टैक्सेस का बोझ डालकर शौकत तरीन ने मईशत का पहिया जैम कर दिया। चेरी रहमान ने कहा, मुश्किल हालात आएंगे, कीमतें और बढ़ेंगी। पीटीआई की नाअहली की पाकिस्तान कीमत चुका रहा है। पीएसपी से फिलहाल इत्तेहाद के लिए कोई राबता नहीं हुआ। तकसीम खत्म करना बगैर इम्कान नहीं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं कि फारूक सत्तार का एमकेएम के लिए इलेक्शन लड़ने का इम्कान नहीं है। पीआईबी की नशिस्त से मुतालिक फारूक सत्तार और राबता कमेटी ने मिलकर फैसला करना है। पीएसपी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि साबित कर दें कि एक भी पोलिंग स्टेशन के अंदर गया, सियासत छोड़ दूंगा। पीएसपी एमक्यूएम को खत्म करने के लिए नहीं बनाई थी, पार्टी इंसानों की फलाह और अपनी कौम के लिए बनाई थी। कोई समझ रहा है कि बाहर से लाकर दूसरी जमात को बिठाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने शहबाज शरीफ को बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार देते हुए कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत रोज झूठ बोलती है, नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत मजदूर की उजरत 25,000 करने के नोटिफिकेशन से फरार हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सफ़ेद चने की कीमत 213 रुपये फी किलो से बढ़कर 300 रुपये हो गई। दाल चना की कीमत 162 से बढ़कर 190 रुपये। दाल मसूर 215 रुपये फी किलो से बढ़कर 270 रुपये फी किलो हो चुकी। आम आदमी दाल खाता है, मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर रखी है। पीपी 170 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में चोर चोर के नारे लग गए। पीटीआई मुनहरिफ उम्मीदवार और ओन चौधरी के भाई अमीन चौधरी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो गया। बागड़िया में आवाम ने अमीन चौधरी का इस्तकबाल चोर चोर के नारों से किया। गद्दार गद्दार के भी नारे लगाए। अमीन चौधरी आवाम का रद्द-ए-अमल देखकर गाड़ी रोके बगैर काफिले के साथ निकल गए। 2018 में अमीन चौधरी को पीटीआई की जानिब से टिकट दिया गया था। डी सीट होने के बाद अमीन चौधरी को नून लीग ने टिकट दिया है। अस्करी क़यादत के खिलाफ कैनेडियन वजीर खारजा का बयान। कैनेडियन हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। दफ्तर खारजा ने एहतजाजी मरासला कैनेडियन हाई कमिश्नर के हवाले किया। दफ्तर खारजा का कहना है, कनाडा के वजीर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सिफारती आदाब के खिलाफ था। अवाम 26 जून को बल्ले पर मोहर लगाकर तरक्की और खुशहाली का साथ देंगे। साबिक वजीर मुराद सईद का PK7 की इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से खिताब। कहा कि पीटीआई ने स्वात को तरक्की की राह पर गामजन किया। चोरों ने आवाम को तारीकियों में धकेल दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। NRO 2 आवाम को भुगतना होगा। आवाम फौरी इंतखाबात और इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं मुफ्त बिजली किसी को ना दी जाए, मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स की रकम तनख्वाह में डाल दी जाए। नैब का कानून तब्दील, सदर मुमलिकत के दस्तखत से इनकार पर कौमी एहतसाब, ऑर्डिनेंस में तरामीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। टैक्स, वफाकी, सूबाई काबीना, कौंसल, स्टेट बैंक के फैसले नैब इख्तियार से बाहर। वफाकी सूबाई कवानीन के तहत रेगुलेटरी बॉडीज़ के केसेस पर भी नैब इख्तियार खत्म। माली फ़ायदा लेने के सबूत के बगैर तरीक़ाकार की खराबी पर नैब कार्रवाई नहीं होगी। नए कानून में मुकदमा साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर आयद होगी। महज गुमान पर मुलजिम को सजा की शिक खत्म कर दी गई। चेयरमैन नैब मुलजिम के फरार या शहादतें ज़ाया करने की शवाहिद पर वारंट कर सकेंगे। नैब अफसरान पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की तफसील आम करने पर पाबंदी होगी। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक डिप्टी चेयरमैन इदारे के सरबराह होंगे। तकर्रुर सदर के बजाय वफाकी हुकूमत करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहन सलाही ने FIA को जवाब जमा करवा दिया। FIA ने 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा 23 जून तक जमा कराने की हिदायत की थी। काफ लीग के रहनुमा 4 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वतन से जाने से पहले और बाद के केसेस का रिकॉर्ड जमा। बाबर गौरी की कई मुकदमात में मतलूब हैं। पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब में हुकूमती जमातों का मिलकर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का तमाम जमातों को लोटे का मुश्तरका इंतखाबी निशान देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब में 20 अराकीन ने ज़मीर को दौलत की दहलीज पर सरनिगू किया। तहरीक इंसाफ कसीर जमाती हुकूमती इत्तेहाद का मुकाबला कर रही है। लोटे का निशान मिलने से आवाम को दौरान इंतखाब फैसला साजी में मदद मिलेगी। काफ लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम में गुस्सा है, इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। धांधली और पुलिस को इस्तेमाल किया तो सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। इलेक्शन कमीशन की सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा दरखास्तों पर अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा तमाम हल्काबंदियां कानून के मुताबिक की हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं। सिंध हुकूमत से मुशावरत के बाद शेड्यूल जारी किया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पुरतशद्दुद हो सकते हैं। रहनुमा PTI अली जैदी को खदशा। कहा कि लोगों को अगवा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करें। इमरान इस्माइल बोले कि बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मुकाबला सिर्फ PP से ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। मईशत का भट्टा बैठ गया। मुल्क का बच्चा बच्चा आज मकरूज है। रोने धोने से मसाइल हल नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा PDM और PTI की इक़्तिदार की लड़ाई से माशी बहरान पैदा हुआ। चेयरमैन FBR का कौमी मईशत के हवाले से बयान तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म मरी एक्सप्रेस वे की बार बार टूट फूट पर बरहम। मरी में NHA हुकाम की ब्रीफिंग के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल कबल आया था, सड़क का हाल बुरा था। मरी एक्सप्रेस वे की बेहतरी के लिए कंसल्टेंट रखा जाए। तामीराती मंसूबों में बेहतरी के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। हज़ारा मोटर वे पर चीनी माहिरीन ने काम किया। हज़ारा मोटर वे की क्वालिटी लायक़ तहसीन है। मयारी काम के लिए हज़ारा मोटर वे बनाने वालों से रहनुमाई ली जाए। फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन का एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एहतमाम। नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मेडल्स दिए गए। मेहमान खुसूसी सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब में कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और वाइड स्पेक्ट्रम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के आज के हेल्थ केयर सिस्टम की पहचान है। फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में दी जाने वाली तालीम का आला मयार है। दूसरा 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर पाक बहरिया में शामिल। फ्रिगेट पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमिश्निंग तकरीब चीन में हुई। पाकिस्तान नेवी मिशन के सरबराह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS तैमूर जदीद जंगी हथियारों और आलात से लैस है। मुख्तलिफ जंगी हालात में मुअस्सर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखता है।
حج سیزن میں مقدس مقامات پر LPG گیس کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی. حاجی اپنے کیمپس میں بھی گیس سلنڈر استعمال نہیں کر پائیں گے. سعودی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ پابندی کا مقصد کسی ناخوشگوار واقعے کی. کیا یہ آؤٹ ہو گیا؟ بالر بھی حیران پریشان. لیڈز ٹیسٹ میں کیوی بیٹر ہینری نکولز کی بدقسمتی. انگلش بالر کی گیند پر سیدھا شاٹ کھیلا مگر گیند نان اسٹرائکرز اینڈ پر کھڑے میچل کے بلے سے ٹکرا کر فیلڈر کے ہاتھ میں چلی گئی. اور غزر ٹائیگرز اور پھنڈر ڈیفینڈرز پولو ٹورنامنٹ کے اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے. گلگت بلتستان کے خوبصورت وادی پھنڈر میں جاری ایونٹ کے افتتاحی روز غزر ٹائیگرز اور پھنڈر ڈیفینڈرز نے کامیابی حاصل کر لی.